Good morning, student. Let us start the class. This is for class 9, subject history, and the topic is the Russian Revolution, chapter 2nd of the history. And today I will discuss about the socialism in Russia. Already in the previous class, I told that what is socialism. Socialism means the distribution of the profit between the labor. The distribution of the profit from the industries are distributed in the labor. There is a need of the equality in the society. Resources and property are equitable distributed between the different people of the society. Concentration of the resources or capital in few hands are totally avoided. It means that socialism means that concentration of the property or resources in the hand of some people is totally avoided. Then let us understand about the condition before the 1914. Already in the previous class I told you that in 1914 the Tsar Nicholas became the king of the Russia. Just let us understand about the condition before the 1914. So before the 1914, all the political parties were illegal in Russia. Before the 1914, all the political parties were illegal in Russia. Not party were supported here. Only monarchical power was followed in the Russia. The Russian Social Democratic Workers Party formed in the operated secretly within media. It means that the Russian after in 1914 Democratic Workers Party, because already you know that after industrial revolution most of works were created in the factories. Most of people moved towards the factories in search of work. Women and children also moved towards the factories in search of work. Created the problem in the city. The problem of sanitation and the better working condition for the laborers in the factories. So let us understand that the workers in the factories formed the Social Democratic Party, which were operated secretly with the help of media, newspaper, in which they demand the better working condition, maximum wages and reduction of the working hour. But the socialist, in the eyes of socialist, Russian peasants were the main force of the revolution, because most of the people were engaged in the agriculture in Russia. Most of the people engaged in agriculture in Russia. So the Russian socialists believed that there is a need of the improving the condition of the peasant. They focused on the peasant. They hope that the revolution needs peasants, and revolution is for the peasants. Revolution was for the peasant. Socialists formed the Social Revolutionary Party in 1900. It means that in the support of the peasant, the socialists formed the Socialist Revolutionary Party in 1900. But Social Democrats are the different from the Social Revolutionaries. What were the differences between the Social Democrats and Social Revolutionaries? Already the socialists believe that there is a need of the support and protection of the peasants, because as a tenants they had no any customary right over the leased land. Already you know about that. So there is need of the customary right and the improving condition, because most of the people in the village directly engaged in the agriculture, and already you know that 85% of the population directly engaged in the agriculture in Russia. But after the industrial revolution, workers moved towards the factories in search of work. तो यहाँ पर हम लोग सोशलिज्म की चर्चा कर रहे हैं. इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको सोशलिज्म और कैपिटलिज्म क्या होता है उसके बारे में बताया था.
सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में क्या डिफरेंस है? सोशलिज्म का मतलब होता है कि प्रोडक्शनल प्रॉफिट और प्रोडक्शन पर को जो है अगर क्या हो, सोसाइटी का राइट हो, वर्कर्स में भी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। रसिया में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इंडस्ट्रीज करे हुए तो प्राइवेट ऑनर्स ज़्यादा थे, लेकिन बड़े इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट अपने नियंत्रण में रखती थी, लेकिन वो प्राइवेट ऑनर्स के ही होते थे। प्राय प्रॉफिट को सीधा वो अपने कंट्रोल में रखते थे, लेबर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते थे। वर्किंग आवर ज़्यादा था, वर्कशॉप्स था, उसमें फैक्ट्रीज थे, फैक्ट्रीज में कुछ वर्किंग आवर कम था, लेकिन वर्कशॉप में ज़्यादा लोग इंगेज थे, वहाँ पर वर्किंग आवर ज़्यादा था। एक्सट्रीम कंडीशन था, बेटर वेजिंग कंडीशन नहीं था, लेबर जो है स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता था। कार्ल मार्क्स जो, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने अपने दास कैपिटल में इसकी लेबर के कंडीशन की चर्चा की, ठीक है। तो 1914 के पहले जो है सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना हुई और मीडिया के माध्यम से उन्होंने डिमांड शुरू कर दिया कि उनको क्या चाहिए, ठीक है। उसके बाद रशियन सोशलिस्ट उस समय जो थे वो रशियन पीजेंट को ही मूवमेंट का सबसे बड़ा हिस्सा मानते थे। वो चाहते थे किसानों को जो है वो ज़्यादा महत्व दिया जाए, ठीक है। और सोशलिस्ट ने जो है सोशल रेवोल्यूशनरी वर्कर्स की पार्टी अलग बनी, रेवोल्यूशन और फॉर पीजेंट के लिए सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना हुई। तो जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी था वो रेवोल्यूशनरी पार्टी से बिल्कुल क्या था, अलग था। अब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था इसकी चर्चा हम करेंगे, तो आप ध्यान से सुने। एग्जामिनेशन में आता है कि सोशल रेवोल्यूशनरी और सोशल डेमोक्रेट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था उसकी चर्चा यहाँ पर होगी। तो चलिए डिफरेंसेस की बात करते हैं। अब यहाँ पर दो पार्टी बन चुकी है, एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, एक सोशल वर्कर पार्टी। तो आइए दोनों में डिफरेंस जाने। सोशल डेमोक्रेट्स ठीक है, ये क्या चाहते थे, सोशल डेमोक्रेट्स और सोशल रेवोल्यूशनरी में डिफरेंस करेंगे। सोशल डेमोक्रेट्स और सोशल रेवोल्यूशनरी में डिफरेंसेस होगा अभी। Let us start the difference between the social democrats and social revolutionary। तो 1914 से पहले जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज बनी, एक जो है सपोर्ट कर रही थी लेबर को, तो एक पार्टी जो है पीजेंट्स को सपोर्ट करते। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था, व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन द सोशल डेमोक्रेट्स एंड द सोशल रेवोल्यूशनरी। They believed workers to the main force of the revolution. Social Democrats believed that workers are the main force of the revolution. There is a need of the revolution for the improving the condition of the workers. But in case of the revolutionary, they believed that peasants to the main force of revolution. There is a need of the revolution. There was a need of the revolution for the peasant. In case of social democrat, they wanted benefit for the workers and control on the factors of production. They wanted the benefits for the workers, better working condition, for the workers and the reduction of the time, working time, but they demanded land to the peasants. They believed that the peasants work hard to produce crops or help in the production. So the land is distributed to the peasants. Social Democrats felt that peasants were not a united group as they were rich and poor and many owned large tracts of the land. Basically, the Democrats believed that in case of agriculture, the different types of peasant, large scale peasant, small scale peasant and landless. There is a mix up of the different type of peasant. Most of peasants have a large tract of land. Most type of peasants of the large tract of land.
So they were not a united group, but the socialists favored the peasants as a natural. They believed that the peasants were the natural socialists. These were the basic differences between the social democrats and social revolutionaries and the parties formed by them in the Russia. तो रसिया में जो पार्टीज बनी तो दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस थे उसकी चर्चा यहाँ पर मैंने कर रहा हूँ कि सोशल डेमोक्रेट्स का मानना था कि जो वर्कर्स हैं वो रेवोल्यूशन के जो है मेन फोर्स हैं, जबकि पीजेंट्स जो हैं वो रेवोल्यूशन के मेन फोर्स हैं, ऐसा सोशल रेवोल्यूशनरीज का मानना था। क्योंकि ये पीजेंट्स को सपोर्ट कर रहे थे, एग्रीकल्चर ज़्यादा जो है होता था, रसिया में 85% लोग एग्रीकल्चरिस्ट थे, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद मूवमेंट जो है वो इंडस्ट्रीज़ की ओर बढ़ा, एग्रीकल्चर की से लोग जो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ की ओर मूव करने लगे। सोशल डेमोक्रेट्स जो है वो वर्कर्स को सपोर्ट कर रहे थे, जबकि सोशल रेवोल्यूशनरी जो है वो फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे थे। सोशल डेमोक्रेट्स का मानना था कि वर्कर्स को फ़ायदा दिया जाए और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर उनका नियंत्रण हो, ठीक है। प्रोडक्शन का जो भी फैक्टर्स हो उन पर नियंत्रण हो, जो फैक्ट्री ओनर हैं वो प्रॉफिट को शेयर करे, ठीक है। लेबर जो भी है उनको बेटर वर्किंग कंडीशन दिया जाए, वेजेस दिया जाए और वर्किंग टाइम को कम किया जाए। जबकि सोशल रेवोल्यूशनरी केवल पीजेंट्स की मांग कर रहे थे, ये पीजेंट्स को लैंड की मांग कर रहे थे। ऐसे पीजेंट्स जो लीज लैंड पर वर्क कर रहे थे पर कस्टमरी राइट नहीं मिल रहा था, ये डिमांड कर रहे थे लैंड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द पीजेंट्स। किसानों के लिए जो है ज़मीनों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, बड़े ज़मींदारों से ज़मीनों को लेकर किसानों में बांटना चाहिए था। तो सोशल डेमोक्रेट्स एक तरफ वर्कर्स को सपोर्ट कर रहे थे और सोशल रेवोल्यूशनरी जो है दूसरी तरफ किसानों को सपोर्ट कर रहे थे। डेमोक्रेट्स का मानना था कि किसान तो कई प्रकार के हैं, कुछ अमीर हैं, ज़मींदार हैं, ठीक है, कुछ गरीब है, तो मिक्सअप है, इसलिए जो है वो इस यूनाइटेड ग्रुप के पार्ट नहीं माने जाएंगे। जबकि वर्कर्स जो हैं वो प्रायः गरीब है, वो वर्कर्स क्वार्टर में रहते हैं, एक एक्सट्रीम कंडीशन में जीते हैं, कई प्रॉब्लम्स है, बेटर वर्किंग कंडीशन नहीं है, वेजेस नहीं है, ठीक है ना, वर्किंग ड्यूरेशन जो है उनका ज़्यादा है। इसलिए सोशल डेमोक्रेट्स का मानना था कि मूवमेंट में केवल वर्कर्स के डेवलपमेंट पर फोकस किया जाए, उनके लिए जो है मूवमेंट को सपोर्ट किया जाए। जबकि सोशल रेवोल्यूशनरीज का मानना था कि वास्तव में अगर हम समाजवादियों की बात करते हैं, नेचुरल सोशलिस्ट की बात करते हैं, तो वो किसान ही हैं, फार्मर्स आर द नेचुरल सोशलिस्ट, इसलिए वो उनको सपोर्ट कर रहे थे। These were the basic difference between social democrats and the social revolutionaries। ये जो है आपका डिफरेंस है सोशल डेमोक्रेट्स और सोशल रेवोल्यूशनरी में। एग्जामिनेशन में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जो है अब 1914 के बाद क्या होता है उन घटनाओं की चर्चा जो है यहाँ पर होता है। लेट अस डिस्कस अबाउट द इवेंट्स that occurred after 1914। तो चलिए 1914 के बाद की होने वाली घटनाओं की चर्चा हम करते हैं। Let us start the 1905 revolution before 1914। 1914 से पहले 1905 में भी एक क्रांति हुई थी। Let us understand about that, ये क्यों हुआ। तो 1904 was all the worst for the Russian workers। चूँकि रशियन वर्कर्स का कंडीशन क्या था उसकी चर्चा हो गई। तो 1904 में भी उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई, क्योंकि द प्राइजेज ऑफ एसेंशियल गुड्स इंक्रीज्ड विद द डिक्लाइन इन द वेजेस इन द डिक्लाइन इन द वेजेस क्रिएटेड द रोज ऑफ द प्राइस ऑफ द एसेंशियल गुड्स क्रिएटेड द प्रॉब्लम्स फॉर द वर्कर्स वी आर डिसमिस्ड दैट कॉल फॉर द इंडस्ट्रियल एक्शंस। In some factories, workers were dismissed from the workers, so there was a need of the industrial actions. A strike demanding reduction for working hours, increase in wages, and improvement in working condition. Workers demanded a strike. They demand reduction of working hour, increase in wages, and improvement in working condition, because all of these support their life. These were essential for improvement of the condition of the workers. Now on the Sunday, workers led by the Father Gapon were attacked by the police, killing hundreds. This came to be known as Bloody Sunday, an incident which
immediate cause of the 1905 revolution was the Bloody Sunday. The workers led by the Father Gapon created a peaceful protest that support for the workers against the Tsar Nicholas I, but police attack on the peaceful protestation led to the killing of hundreds of workers. This incident is known as Bloody Sunday, and that incident became the immediate cause for the 1905 revolution. In the countryside, there were big strikes seen, students walk out. Now, alarming from this condition, Tsar Nicholas I allowed to form the parliament. That parliament was known as Duma. The parliament was known as Duma. उस parliament को Duma कहा जाता था. After that, the political activities were restricted by the Tsar, as social democrats and social revolutionary kept out. This is the overall revolution that occurred in 1905. Understand? 1905 में जो क्रांति हुई उसको फिर से जो आप देख सकते हैं कि 1904 में चूंकि 14 में भी क्रांति जो है फरवरी और अक्टूबर की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भी एक क्रांति हुई थी 1905 में, चूंकि वर्कर्स के कंडीशन तो सही थे नहीं, एक एक्सट्रीम लाइफ वो जी रहे थे, तो 1904 में उनकी स्थिति और बुरी हो गई क्योंकि जो एसेंशियल गुड्स थे उसके दाम बढ़ गए थे, क्योंकि वेजेस कम था और वस्तुओं का दाम बढ़ा, तो इससे कहीं ना कहीं उनको कठिनाइयों से भरा जीवन जीना पड़ रहा था। इस वजह से जो है वर्कर्स ने बेटर वर्किंग कंडीशन और बेटर वेज की मांग शुरू कर दी, लेकिन जो है उनको उनके कामों से निकाला गया। इसके लिए इंडस्ट्रियल एक्शन उन्होंने लेना शुरू किया, स्ट्राइक बुलाया गया। स्ट्राइक के माध्यम से उन्होंने जो है कैपिटलिस्टों पर यानी फैक्ट्री ओनर्स पर दबाव डालना शुरू किया कि उनको जो है उनके वेजेस बढ़ाए जाए और उनके वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए, एक बेटर वर्किंग कंडीशन दिया जाए ताकि जहां वो काम करे। इसकी मांग शुरू हो गई। ठीक है, राजा के साथ विचार करने के लिए एक प्रदर्शन शुरू हुआ। फादर गेपन के नेतृत्व में सैकड़ों वर्कर ने प्रदर्शन शुरू किया और पुलिस ने उन पर गोलियां चलाई, जिसकी वजह से सैकड़ों वर्कर्स मारे गए। इस घटना को ही जो है ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। 1905 की क्रांति का यह जो है तत्कालिक कारण बना, जब फादर गैपन और वर्कर्स पर इनके पीसफुल प्रोसेशन पर जो है पुलिस ने हमला किया और सैकड़ों वर्कर्स मारे गए। इस घटना को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। तब वर्कर्स लोगों ने बड़े पैमाने पर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में देश के भीतर जो है रसिया के भीतर जो है हड़ताल कर दिया। ठीक है, स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिया, बड़े पैमाने पर हड़ताल और जो है वॉकआउट देकर राजा ने जो है इस बढ़ते हुए आंदोलन को देखकर एक्सेप्ट किया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म होगा। ठीक है, पार्लियामेंट का फॉर्मेशन होगा, इसको ड्यूमा कहा जाता है, यानी कि दैट पार्लियामेंट वाज नोन एज ड्यूमा। ड्यूमा का फॉर्मेशन होगा, लेकिन कुछ समय के बाद पॉलिटिकल एक्टिविटीज को फिर से जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, कंट्रोल कर दिया गया और फर्स्ट ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया गया। और कंजर्वेटिव्स, चूंकि कंजर्वेटिव की चर्चा पहले ही हो चुकी है, आइडियोलॉजीज ऑफ कंजर्वेटिव, लिबरल्स एंड द रेडिकल्स, तो कंजर्वेटिव ने सेकेंड ड्यूमा अपने बेसिस पर जो है कि जहाँ पर उनको ज़्यादा राइट्स मिले उसको फॉर्म किया। सोशल रेवोल्यूशनरी और सोशल डेमोक्रेट्स जो वर्कर्स और फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, उन्हें सेकेंड ड्यूमा से बाहर रखा गया। यानी कि फर्स्ट ड्यूमा में जहां डेमोक्रेट और रेवोल्यूशनरी शामिल हुए, सेकेंड ड्यूमा में जो है केवल कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी को ही फॉलो किया गया। कंजर्वेटिव्स डोमिनेंट हो गए और सोशल रेवोल्यूशनरीज और सोशल डेमोक्रेट्स जो कि इंप्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन की मांग कर रहे थे फॉर द फार्मर्स एंड द लेबर्स, वो जो है सेकेंड ड्यूमा से बाहर हो गए। इस तरह से जो है 1905 में रेवोल्यूशन तो हुआ, लेकिन उसे कंट्रोल ड्यूमा के सस्पेंशन के साथ किया गया। दूसरी ओर जब 1914, चूंकि आप जानते हैं कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया, तो जो कि 1918 तक चलता रहा, इसी दौरान जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो है सेंट्रल पावर, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की और जो है अलाइड पावर्स फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया, अलाइड पावर एंड सेंट्रल पावर जो है वो एक दूसरे के खिलाफ जो है इसी कॉलोनाइजेशन और इंपीरियलिज्म के चक्कर में दूसरे के खिलाफ खड़े होगा और एक दूसरे से
युद्ध लड़ने के बड़े पैमाने पर ये लड़ाई लड़ी गई थी विश्व में, इसलिए इसे विश्व युद्ध का नाम दिया जाता है। रसिया भी जो है वो इस लड़ाई में शामिल हुआ, ठीक है, बिना ड्यूमा से कंसल्ट किए हुए। जार निकोलस सेकंड ने 1914 में जो है रसिया को वार में, यानी विदाउट ड्यूमा में जो है कंसल्टिंग किए हुए, परामर्श लिए हुए, उसने जो है रसिया को वार में इंगेज कर दिया, उसने अलाइड पावर के साथ उसे मिक्स कर दिया, ठीक है। और इस लड़ाई में रसिया को भी कैजुअलिटी देखनी पड़ी, उसको भी समस्याएं होने लगी, ठीक है, हेवी कैजुअलिटी के साथ। और सप्लाईज जो है वो बुरे हो गए, सप्लाईज कम हो गई और भी जो है कंडीशन वर्स्ट होने लगा, क्योंकि रसिया को जो है विदाउट कंसल्टिंग ड्यूमा में कंसल्ट किए बिना ही शामिल कर दिया गया। लेबर शॉर्टेज की और लड़ाइयों में लेबर्स को शामिल किया जाने लगा। लेबर शॉर्टेज की वजह से वर्कशॉप जो है वो बंद होने लगे, ठीक है। और इसकी वजह से जो है भोजन की समस्या जो है आम लोगों के बीच में शहरों में देखी गई, ठीक है, क्योंकि सप्लाईज कम होने लगे, भोजन की समस्या जो है शहरों में खड़ी हो गई। और इसी की वजह से जो है इस फैसले, जार निकोलस सेकंड के इस फैसले की वजह से अब आवश्यक हो गया एक बड़े पैमाने पर रेवोल्यूशन हो, जिससे रसिया में बदलाव हो, रसिया को इस कैजुअलिटी से बचाया जाए, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है उससे रसिया को हटाया जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फरवरी रेवोल्यूशन 1914 की चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। तो आज मैंने आपको रशियन रेवोल्यूशन में जो है सोशलिज्म की चर्चा की, ठीक है, सोशल डेमोक्रेट्स और सोशल रेवोल्यूशनरी में क्या बेसिक डिफरेंस था, ठीक है, उसकी चर्चा की। इवन जो है 1905 का जो रेवोल्यूशन हुआ 1914 से पहले, उस रेवोल्यूशन का कारण क्या था, कैसे हुआ और किस तरह से जो है ड्यूमा का फॉर्मेशन हुआ, ये याद रखेंगे। ड्यूमा इज द parliament of the Russia which is formed after the 1905 revolution, but the Tsar Nicholas first suspended the first Duma and formed the second Duma, ठीक है। तो सेकेंड ड्यूमा का फॉर्मेशन हुआ और विदाउट कंसल्टिंग द जार निकोलस सेकेंड इंगेज द रसिया इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। बिना कंसल्ट किए हुए रसिया को जार निकोलस सेकेंड ने जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार में धकेल दिया, जिसकी वजह से रसिया को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। फिर से एक बार सोशल डेमोक्रेट्स और रेवोल्यूशनरी मिलके जो है रेवोल्यूशन करेंगे, वो डिमांड करेंगे यहाँ पर डेवलपमेंट का, ठीक है। और जार निकोलस को जो है फरवरी रेवोल्यूशन के बाद अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की रसिया में स्थापना होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फरवरी रेवोल्यूशन की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। ओवर।